स्वागत है आपका। देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। दिल्ली के इलेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। दिल्ली के एग्जिट पोल क्या इस बार सही साबित होंगे? जो जनरल डायरेक्शन दिख रही है जिसमें बीजेपी वापस आती हुई दिखाई दे रही है, क्या वो जो डेटा है वो लग रहा है बिलीवेबल, मानने लायक लग रहा है? इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। साथ में नेताओं के दावे। अब मैं आपको दिखाता हूं, जैसे अपने ब्रेक से पहले एक आपको और आंकड़ा दिया, सट्टा बाजार क्या कहता है, वो भी फलौदी का सट्टा बाजार। वहां अरविंद केजरीवाल हारेंगे, इस पर ₹4.5 लगा हुआ है और दूसरे व्यक्ति के हारने पर 45 पैसे बताया इन्होंने लगा। मतलब वो सट्टा बाजार निश्चित मान रहा है कि अरविंद केजरीवाल हारेंगे और परवेश वर्मा जीतेंगे। ये निश्चित भाव वहां पे लगा हुआ है और क्लोज मार्जिन से बीजेपी की सरकार बनेगी, ये सट्टा बाजार कहता है। ज्यादातर एग्जिट पोल कह रहे हैं बीजेपी की सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी को आगे दिखाने वाले भी कुछ एग्जिट पोल हैं। अब दूसरी हाई प्रोफाइल सीट की बात कर लेते हैं, मुख्यमंत्री आतिशी जी की सीट की बात कर लेते हैं। रमेश बिधूड़ी का दावा आपको सुना रहा हूं। और अच्छा, इस वक्त आपको मैं सीधे पार्लियामेंट लेके चलता हूं। विदेश मंत्री जयशंकर बोल रहे हैं अमेरिका से भारत वापस भेजे गए भारतीयों के बारे में। Has had a key role to play in enhancing its quality. Sir, the House would also share the view of the government that it is in our collective interest to encourage legal mobility and discourage illegal movement. In fact, illegal mobility and migration has many other associated activities also of an illegal nature. Moreover, those of our citizens who have been inveigled into illegal movement themselves become prey to other crimes. They are trapped into both moving and working under inhumane conditions. Members are aware that unfortunately there have even been fatalities in the course of such illegal migration. Those who have returned have also testified to their harrowing experiences. Mr. Chairman, sir, it is the obligation of all countries to take back their nationals if they are found to be living illegally abroad. This is naturally subject to an unambiguous verification of their nationality. This is not a policy applicable to any specific country, nor indeed one only practiced by India. It is a general accepted principle in international relations. Sir, honorable members would be aware that the process of deportation is not a new one. I repeat, not a new one, and has been ongoing for several years. I would like to share with the House details of deportation from the United States since 2009. Their numbers, years-wise, as available with our law enforcement authorities, is as follows. 2009, number of deportees 734. 2010, 799. 2011, 597. 2012, 530. 2013, 515. 2014, 591. 2015, 708. 2016, 1303. 2017, 1024. 2018, 1180. 2019, 2042. 2020, 1889. 2021, 805. 2022, 862. 2023, 617. 2024, 1368. 2025, 104. Sir, deportations by the US are organized and executed by the Immigration and Customs Enforcement, ICE authorities. The standard operating procedure for deportation by aircraft used by ICE, that is effective from 2012. I repeat, that is effective from 2012, provides for the use of restraints. However, we have been informed by ICE that women and children are not restrained. Further, the needs of deportees, including during transit, related to food and other necessities, including possible medical emergencies, are attended to. During toilet breaks,
deportees are temporarily unrestrained if needed in that regard. This is applicable to chartered civilian aircraft as well as military aircraft. There has been no change, I repeat, no change from past procedure for the flight undertaken by the US on 5 February 2025. Honorable Chairman, sir, we are, of course, engaging the US government to ensure that the returning deportees are not mistreated in any manner during the flight. At the same time, the House will appreciate that our focus should be on strong crackdown on the illegal migration industry, while taking steps to ease visas for the legitimate traveler. On the basis of information provided by returning deportees about the agents and others involved, law enforcement agencies will take necessary preventive and exemplary actions. I thank you. One second. Please take your seat. Honorable members, take your seat. Will you take your seat? The House has to be run on some rules. Yes, sir. Your leaders are aware of it. Sir, I am aware and this has Please take your seat. Your party has not given your name. Honorable members, under Rule 251, a statement may be made by a minister on a matter of public importance with the consent of the chairman, but no question shall be asked at the time of the statement is made. 1 second. Have some patience. Don't jump the gun. My permission was taken by the Honorable External Affairs Minister to make the statement today. There was a request from the leader of the opposition, and that was agreed by the Parliamentary Affairs Minister and leader of the House, that looking to the public sentiment and need for clarity, some brief interventions may be allowed. I examined the request that came from both sides, and I took the call that I'll be making a departure that will not graduate to a precedent, and I would urge the members whose names have come to me to make brief interventions up to 3 minutes. I call upon Shri Randeep Singh Surjewala. 3 minutes. शुक्रिया सभापति जी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका से भारत भेजे गए 104 भारतीयों के ऊपर अभी स्टेटमेंट दिया है। ये 104 भारतीय अमेरिका ने डिपोर्ट किए हैं। ये इलीगल तरीके से अमेरिका में इन्होंने प्रवेश किया था, इन पर ये आरोप है। और आपने देखा आज पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट हुआ, बाकायदा कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्षी दलों ने नो चेन्स, हमें ये इंसल्ट हुई है भारतीयों की, जिस तरीके से हाथ पैर बेड़ियों में बांध करके उनकी तस्वीरें जारी की गई भारतीयों की कि वो जहाज में कैसे चढ़ रहे थे, उस पर भी विदेश मंत्री ने कहा। उन्होंने ये कहा कि भारत को लीगल ट्रैवल को बढ़ावा देना है, हम इलीगल ट्रैवल को बढ़ावा नहीं दे सकते। हमारे यहाँ पर इस किस्म के जो ये ट्रैवल एजेंट्स हैं जो लोगों को कबूतरबाजी एक किस्म से कराते हैं, इलीगल तरीके से विदेशों में भेजते हैं, उस पर लगाम भी लगानी है। उन्होंने फिर ये भी बताया आगे जाकर के कि कैसे 2009 से डेटा देते हुए हर वर्ष ऐसे ही इलीगल तरीके से अमेरिका में प्रवेश किए लोगों को अमेरिका भारत लौटाता रहा। ये संख्या कुछ 734 अगर 2009 में थी तो एक बार 2000 के पार भी बीच में ये पहुंची है। 2019 में 2042 लोग थे, 2025 में 104, बल्कि 2009 से जो आंकड़ा दे रहे हैं सबसे कम 2025 में ही दिखाई दे रहा है। और फिर उन्होंने ये जो बेड़ियां बांधी गई उनको, उसका भी उन्होंने कहा कि 2012 से अमेरिका में ये नियम बदला है कि इस तरीके से रिस्ट्रेंट्स में ही ऐसे लोगों को वापस भेजा जाता है जहाज़ों के जरिए। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ जो बोला जा रहा है कि इसको उस तरीके से टेकअप नहीं किया भारत सरकार ने अमेरिका के साथ। ये भारतीयों की और भारत की एक किस्म की बेइज्जती हुई है जैसा ट्रीटमेंट इनके साथ किया गया। देखिए, विपक्ष की बातें तो मुझे थोड़ी कम ही समझ में आती हैं। मैं फिर भी यहाँ पे तर्क रखना चाहता हूँ कि देखिए, मेरी व्यक्तिगत रूप से 0.0 सहानुभूति ऐसे भारतीयों से हैं जो कि कानून तोड़ के दूसरे देश में जाते हैं और वहां पर असाइलम लेते हैं। ये जितने भी आए हैं वापस, इन्होंने अर्जियां डाली हैं, एक तो कूद फांद के गए वहां पर,
अमेरिका, वहां पर असाइलम डाला कि हमको राजनीतिक कारणों से भारत में हम असुरक्षित हैं और हमको किसी तरह से आप नागरिकता दे दीजिए, वर्क परमिट दे दीजिए अमेरिका में काम करने का। ये प्रोसेस है इनका। तो ये भारत को जाके कोसते हैं उस जमीन पर, और आप बोल रहे हैं कि इसमें भारत की शान में गुस्ताखी हुई। किस तरह से? आप देश का कानून उस देश का भी मानिए, अपने देश का भी मानिए। अपने देश का कानून साफ है, इलीगल माइग्रेशन हम भी बर्दाश्त नहीं करते, बांग्लादेशियों को हम भी जेल में रखते हैं, हम भी उनको डिपोर्ट करने का प्रयास करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, कल ही परसों में बोला है कि जेलों में आप कब तक रखेंगे, कब तक आप उनको भारतीय खाना खिलाएंगे, आप इनको वापस डिपोर्ट करिए। सेम लाइन पर, और ये मैं बता दूं, अमेरिका में जो ये आइस की बात करते हैं, इमिग्रेशन कंट्रोल एनफोर्समेंट है, वहां पर नियम कानून लिखे हुए हैं उनकी सरकार ने, और वहां पे ओबामा थे उस टाइम पे, ट्रंप नहीं थे। अब ये क्या हो रहा है, इसमें ज्यादा हल्ला इसलिए हो रहा है क्योंकि ट्रंप, अमेरिका जो कर रहा है उसने अपने देश के नियमों के हिसाब से किया, इसमें हम क्या कर सकते हैं? क्या इसमें वाकई भारत सरकार ने कुछ करना चाहिए था जो नहीं किया? दो चीज़ें एक तो समझनी चाहिए। एक तो ये, उन्हें गाली देने की आवश्यकता नहीं है जो लोग गए हैं, उसमें से ज़्यादातर लोग डंकी प्रोसेस से या इलीगल तरीके से नहीं गए, समझे? वो गए लीगल तरीके से थे, लेकिन जो दलाल हैं, जो एजेंट्स हैं हमारे यहाँ भारत में बैठे हुए, वो किसी एक सरकार की, केंद्र सरकार की या पंजाब सरकार की या गुजरात सरकार का मसला नहीं है। जो एजेंट बैठे हुए हैं वो कबूतरबाजी क्या है? कबूतरबाजी क्या है कि वो आपसे पैसा लिया, 10 लाख रुपए लिया, 5 लाख रुपए लिया, 50 लाख रुपए, जो भी लिया, उससे वो वहाँ भेज देते हैं। वहाँ जो कंपनियाँ उनमें काम करवाने के लिए कि भाई आपको रोजगार देंगे, ये करेंगे, और वहाँ उनका वीज़ा, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ले लेते हैं और उनको फाड़ देते हैं। तो वो वहाँ पहुँचकर जाते लीगल तरीके से, बन जाते इलीगल है। ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो खुद इंटरव्यू है ऐसे एक बात सुन लीजिए ना, आपने बात कर ली, आपने बात कर ली अपनी। नहीं, मैं अपनी बात, मेरी बात को काटने की जरूरत कंप्लीट कर ले, आप अपनी बात कर लीजिएगा। तो मोटे तौर पर वो लोग हैं, ठीक है, पहली बात तो। और ये खुद विक्टिम है, आप कह रहे हैं? विक्टिम है ये। और मैं गया हूं, मैं 2007 की बात बताता हूं, मैं राष्ट्रपति जी थे कलाम साहब, उनके साथ गया था पूरे यूरोप में। ये अमेरिका की बात नहीं, पूरे यूरोप में उनको करीब करीब 1 लाख लोगों की तरफ से वो दिया गया था, क्या कहना चाहिए, प्रस्ताव या अर्जी की तरह से कि भाई आप इनका कैसे करें, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स उनके सब फाड़ देते हैं वो वहां पर जो लोग होते हैं। सर, लेकिन मेरे पास जानकारी एक की नहीं है, लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं ना, जैसे मुझे याद आ रहा है मशहूर गायक हैं एक, उनके ऊपर आरोप लगा था, वो क्या करते हैं कि भाई आपके म्यूजिक कर रहे हैं ना, नहीं, वो कहते हैं कि हम आपको अपने म्यूजिक ग्रुप का पार्ट बना करके ले गए और वहां पर आप गायब हो जाओ, आप उनकी रडार से गायब हो गए। तो गायब क्या होते हैं, मतलब उनके वो गए तो वीजा से थे ना, लेकिन आप वहां इस इंटेंशन से गए हो कि मैं यहीं रुक जाऊंगा, वापस नहीं आऊंगा। कह रहा हूं वो विक्टिम है ना, उसको विक्टिम की तरह से समझिए, पहली बात। ये एक बात है, मैं बात सब रख सकते हो नहीं, ऐसा जो आप कह रहे हैं ऐसे भी लोग हो सकते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं जो इस इंटेंशन से दाखिल होते हैं, भाई अमेरिका वीजा नहीं दे रहा, आज लोगों टूरिस्ट वीजा नहीं दे रहा है, तो वो लोगों को बसने के लिए क्यों, लोगों को बसाएगा क्यों? वो बसाएगा। हम अमेरिका की बात ही नहीं कर रहे, हम केवल भारत की बात कर रहे हैं। अमेरिका जो कर रहा है उसको तो अलग से देखेंगे कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, वो हिंदुस्तानी है, तो हिंदुस्तानी मान लीजिए गलती से भी गए हैं, तो एक हमारा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड होता है जिस पर हमें काम करना चाहिए था। और भारत सरकार, जो विदेश मंत्री जी ने कहा कि भैया रेगुलर प्रोसेस है, इसमें ठीक है, तो क्या हम बेहतर तरीके से उनको डिपोर्ट करने के लिए, जैसे अभी कोलंबिया का उदाहरण था कि कोलंबिया के ने अमेरिका के जो विमान था, सैनिक विमान, उसको वापस भेज दिया और कोलंबिया ने अपने 2 सिविलियन विमान भेजे और उसमें प्रॉपर तरीके से ले आए। तो ये तो भारत सरकार कर सकती है ना। इन सब बातों की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये लीगल और इलीगल की बात नहीं हो रही, इलीगल है तो भी अगर हमारे लोग हैं हम ले आएंगे इनको, आपको ऐसे भेजने की जरूरत नहीं है। बड़ी कह रहे हैं कि जो धार्मिक प्रताड़ित लोग हैं उनको मेंबर्स वो देंगे सिटीजनशिप। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए विक्टिम तो विक्टिम ही होता है ना। जैसे अभी इन्होंने एक वर्ड यूज किया असाइलम, सारा केस असाइलम का नहीं है सौरभ जी। कई लोग वहां गए, भीड़ में खो गए, बेहतर रोजगार की तलाश में लोग चले गए, गुमराह लोग थे, उनसे पैसे ठगे गए, तो एक्चुअली वो विक्टिम है। सारे लोग असाइलम नहीं कि पासपोर्ट जमा किया और हमें असाइलम राजनीतिक शरण दे दो, ऐसा मुझे लगता है शायद 104 में से 4 का मामला भी ऐसा नहीं हो। अमेरिकन इमिग्रेशन लॉ दुनिया में सबसे सख्त है सौरभ जी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बात यह है कि क्या उनको एक डिग्निफाइड लाइफ का अधिकार नहीं है? क्या वो मर्डरर थे? क्या ये थे? उनको तो वो तो खुद ठगे गए हैं लाखों लाख रुपए देकर। मैं सिर्फ अभी वो जो बोला हमारे यहाँ चल भी रहा है कि 2012 से अमेरिका ऐसे ही डिपोर्ट करता है सबको। बिल्कुल करता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जैसे कोलंबिया का हवाला दिया, तो क्या आप वो डिग्निफाइड वे में ट्रीट किया सकता था? क्या आप उनको हथकड़ी बेड़ी और 2012 से कह रहे हो तो 10 साल तो आपके टॉयलेट था, इसमें क्या एक्सक्यूज है? वो भारतीय हैं, वो एक्सक्यूज दे रहे हैं आप मुझे। पाकिस्तान। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि आप अपने लोगों को मानवीय, और मैं असाइलम पर भी बता दूं कहानी,
मैं अमेरिका में बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, मैं अमेरिका भी जाता रहा हूँ। असाइलम भी वो, ये कोई राजनीतिक अपराधी नहीं है जो भारत को कोस कर रहे हैं, उनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचता, फिर वो वहाँ के लोग बताते हैं कि भाई आप असाइलम ले लो, भारत सरकार के लिए ये बताइए कि भाई वहाँ नहीं रह सकते हम, वो भी मजबूरी है। ये मजबूरी क्या है इसमें, मैं समझ में नहीं आ रहा। भारत को गाली देना इसमें मजबूरी क्या है? अगर आपको गलत तरीके से वहां ले जाया गया, हाँ। वैसे तो भारत सरकार ने आजकल ये भी कहते हैं कि हर जगह हमारी एम्बेसी में आप जाइए, मेरा पासपोर्ट खो गया या मेरा गायब हो गया, आप जाइए भाई, मुझे वापस जाना है अपने देश, मुझे इस तरीके से ड्यूप कर लिया गया, धोखा देकर के मुझे कोई यहाँ ले आया, वो तरीका भी आपके पास है। तो वो भी हो रहा नहीं तो अमेरिका में और दुनिया भर में तो कितने। एक समीजिए, ब्रेक लेना होगा फिर। क्या भारत सरकार अपने लोगों के साथ उस तरीके से खड़ी नहीं हुई जैसे होना चाहिए था? देखिए, अगर आप किसी देश में अगर गलत तरीके से जाओगे, आपका इंटेंशन गलत है कि इस देश में हमें किसी तरीके से घुसना है, फिर वहां जाके हम इंडिया लौटेंगे नहीं, तो आपके साथ उस देश के लॉ के हिसाब से ट्रीटमेंट होगा। और अमेरिका का जो लॉ 2000 में बना है उसके हिसाब से उन्होंने ट्रीटमेंट किया। तो मुझे लग रहा है कि ये इंटेंशन ही पहले से रहता है लोगों का कि किसी भी तरीके से कोई रास्ता बना लें, हम एक बार अमेरिका में घुस जाए, फिर वहां, और उन्हें पता रहता है, ऐसा नहीं है कि वो इनोसेंट है, जो गए उन्हें पूरी जानकारी रहती है कि आपको वहां जाके छोड़ दिया जाएगा, फिर आप अपनी जिंदगी देखो क्या करना है। उसमें हमारा कनाडा बॉर्डर से जिस तरीके से लोग जाते हैं उसकी वीडियो मरते हैं, ठंड के कारण मर जाते हैं लोग, कपड़े नहीं रहते, पैदल चलते, कई बार पुलिस की गोली से मारे जाते हैं, कई बार रास्ते में लोग मारे जाते हैं, बच्चों तक को लेके जाते हैं उस रास्ते। ये जो लोग भी जाते हैं, ये भी गैर तरीके जो इन्हें वहां घुसाते हैं, बता देते हैं कि आपको वहां छोड़ने तक हमारी ड्यूटी है, उसके बाद आप जानो, आपका काम जाने, हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं होगा। और ये कहते हैं ठीक है, आप हमें बस छोड़ दो, हम देख लेंगे। तो आप अगर गैर कानूनी तरीके से जाओगे तो आपको ये सब भुगतना पड़ेगा, उद्देश्य कानून को भी भुगतना पड़ेगा। भारतीय सरकार के बारे में कहा जाता था कि भाई हथकड़ी लगा के नहीं, तो 2012 से अभी विदेश मंत्री ने बताया कि वहां से लॉ बदल गया 2012 से। जिस तरीके से 2012 में आप बात कर रहे हैं, मैं या आम आदमी पार्टी सरकार को कुछ करना चाहिए पंजाब में, ये सब रुकवाइए। एक सर ब्रेक, देखिए इसमें सबके अलग अलग राय बटी हुई है, हम लोगों की भी, मेरी भी राय। अभी सर ब्रेक, बस एक बात बता के जा रहा हूं। अभी की बात है, 4 दिन पहले अमेरिका से लौटे एक व्यक्ति से मेरी बातचीत हो रही थी यही दिल्ली के अंदर। उन्होंने इसी सब्जेक्ट पर मुझे बताया, बोले जितने भी हमारे लोग वहां पर गलत तरीके से एंट्री की कोशिश करते हैं, अगर ये बॉर्डर पार कर गए, जैसे कनाडा रूट से बहुत लोग जाते हैं, उनकी कोशिश ये होती है किसी तरह मुझे इनकी पुलिस पकड़ ले। पुलिस ने एक बार पकड़ लिया, आप उनके सिस्टम में आ गए, तो उसके बाद वो आपको आपका रखरखाव भी करेगा, आपको वकील भी मिलेगा, बिल्कुल वो है। और उसके बाद जो आपने कहा, ये जो कह रहे थे, कई मामलों में वहां पर आपको रहने की इजाजत भी मिल जाती है। मैक्सिको से घुसते सर, मैक्सिको की बॉर्डर से घुसते हैं, दूसरे रेफरेंस में मैक्सिको वीजा रोक दिए, भारत का कोई व्यक्ति मैक्सिको नहीं जा सकता।